In this video, we will discuss Goodwin's model of business cycles. This is part 1 of the 6 videos on this model. First part, here we will discuss introduction. Second part is related with the features or assumptions of this model. Part 3 explains the model, what is the model given by Goodwin, and in part 4, explanation of the business cycles is given. Part 5 relates growth and cycles. And finally, in part 6, there is criticism of this model. This is the first part. Here we will discuss introduction of the Goodwin's model of business cycles. Richard M. Goodwin was an American mathematician and economist. He received his BA and PhD at Harvard and taught at Harvard in USA, University of Cambridge in UK, and University of Siena in Italy. Goodwin presented a non-linear model of trade cycles. In an article, The Non-Linear Accelerator and the Persistence of Business Cycles, appeared in Econometrica in 1951, and in a paper, A Model of Cyclical Growth, in 1955, as against Hicks' linear model. गुडविन जो हैं, रिचर्ड गुडविन, इन्होंने मॉडल दिया है ट्रेड साइकिल का. इन्होंने 2 आर्टिकल लिखे, द नॉन लीनियर एक्सेलरेटर एंड द परसिस्टेंस ऑफ बिजनेस साइकिल्स, जो 1951 में आया. दूसरा आर्टिकल इन्होंने लिखा ए मॉडल ऑफ क्लास साइक्लिकल ग्रोथ, जो 1955 में आया. गुडविन का जो मॉडल है, जो इन्होंने प्रेजेंट किया है, दिया है ट्रेड साइकिल का मॉडल, वो है नॉन लीनियर मॉडल. हिक्स का जो मॉडल था वो था लीनियर मॉडल. हिक्स, सर जॉन हिक्स, was a British economist. The most familiar of his many contributions in the field of economics were his Statement of Consumer Demand Theory, ISLM model, and General Equilibrium. In 1939, he wrote a famous book, Value and Capital. The compensated demand function is named the Hicksian demand function in memory of him. In 1972, he received the Nobel Memorial Prize in Economic Sciences for his pioneering contributions to general equilibrium theory and welfare theory. Hicksian trade cycle theory is based on the combination between multiplier accelerator interaction and Harrod-Domer growth model. जॉन हिक्स ने जो ट्रेड साइकिल का मॉडल दिया है वो लीनियर है, बट गुडविन ने जो मॉडल दिया है वो नॉन लीनियर है. Goodwin's model of business cycles, like Hicks, is an extension of the multiplier accelerator model of business cycles. Hicks का मॉडल भी और गुडविन का मॉडल भी मल्टीप्लायर एक्सेलरेटर इंटरेक्शन वाला जो मॉडल है सैमुअलसन ने दिया था, उसकी एक्सटेंशन है. Like Hicks, he thinks there is a need to combine growth and cycles. हिक्स की तरह गुडविन भी ये सोचते हैं कि ग्रोथ एंड साइकिल्स को स्टडी करने की ज़रूरत है, उनके कॉम्बिनेशन की ज़रूरत है. मतलब जो ग्रोथ होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ, वो साइक्लिकल है, स्मूथ नहीं है. साइक्लिकल ग्रोथ क्या है, इसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाई हुई है ऑन द ट्रेड साइकिल. एक ही पार्ट है उस वीडियो का,
ये ट्रेड साइकिल क्या होते हैं, क्या उसके फेज हैं. However, he thinks, he means Goodwin, that Hicks' introduction of growth by means of exponentially growing autonomous investment is not fully sufficient. गुडविन सोचते हैं या गुडविन एक्सप्लेन करते हैं कि हिक्स ने जो कहा कि ग्रोथ जो उन्होंने दी हिक्स ने, वो किस चीज़ के बेस पे है ग्रोथ. वो बेस पे है ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होना. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मीन्स अ शार्पर इंक्रीज ओवर टाइम. हिक्स के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट जब हम बहुत ज़्यादा करते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट से ग्रोथ होती है. बट गुडविन के अकॉर्डिंग ये हिक्स का कहना कि इन्वेस्टमेंट के बेस पर ग्रोथ होती है, ये फुली सफिशेंट नहीं है. सफिशेंट तो है, इन्वेस्टमेंट करने से ग्रोथ होती है, बट ओनली रीज़न ऑफ ग्रोथ इन्वेस्टमेंट हम बोलें ऐसा नहीं है. अकॉर्डिंग टू गुडविन, growth in labor force and improvements in techniques are crucial factors in determining economic growth. गुडविन की यही हिक्स से अलग कंट्रीब्यूशन है, यही कारण है जो इस मॉडल को नॉन लीनियर बनाता है हिक्स के कंपैरेटिव. गुडविन के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट अकेला सफिशेंट नहीं है, दो और चीज़ें ज़रूरी हैं. एक तो लेबर फोर्स की ग्रोथ, दूसरा टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट, जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ करते हैं. तो तीन चीज़ें हो गई यहाँ पर टोटल. अगर हम करें, इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, लेबर फोर्स अच्छी हो और टेक्निक इम्प्रूव हो, फिर इकोनॉमिक ग्रोथ होती है. और दीज टू फैक्टर्स ये जो ऐड करे हैं गुडविन ने, लेबर फोर्स एंड टेक्निक, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्निकल इम्प्रूवमेंट्स, ये जो दो फैक्टर हैं, इन हिज व्यू, इन गुडविन्स व्यू, कॉज परसिस्टेंट ग्रोथ इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी. तो ये जो दो चीज़ें हैं, दो फैक्टर जो हैं, दो डिटर्मिनेंट्स, लेबर फोर्स एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये इकॉनमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज़ करते हैं, उसमें ग्रोथ करते हैं प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी में. बट नॉट नेसेसरली इक्वल टू ग्रोथ इन डिमांड, पर उतनी भी ये नहीं कर पाते जितनी ज़रूरी है प्रोडक्शन कैपेसिटी में इंक्रीज़ करना. मतलब जैसे हम सपोज़ किसी साल इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेस्टमेंट करने से हमें 100 आउटपुट हो रहा हो, अगले साल फिर हम इन्वेस्टमेंट करें 100 आउटपुट ले लें, और फिर हम इन्वेस्टमेंट करें 100 आउटपुट ले लें, तो हम हर साल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. हाँ, इसको अगर हम और ज़्यादा तरीके से समझें, मान लो इन्वेस्टमेंट है, आउटपुट है. इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं 80, हमें आउटपुट मिल रहा है 100. फिर हमने 80 इन्वेस्टमेंट किया, फिर हमें 100 आउटपुट मिला. तो अगर हर बार 80 इन्वेस्टमेंट करने से हर बार हमें 100 आउटपुट मिल रहा है, इट मीन्स हमारी प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी में कोई ग्रोथ नहीं है. अगर हम 80 इन्वेस्टमेंट करके 100 आउटपुट ले रहे हैं, फिर 80 इन्वेस्टमेंट करके मान लो 110 आउटपुट ले रहे हैं, इट मीन्स हमने प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी को इंक्रीज़ किया है. बट नॉट नेसेसरली इक्वल टू ग्रोथ इन डिमांड. पर ये जो दो फैक्टर हैं, लेबर एंड टेक्निकल डेवलपमेंट, इनकी वजह से प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज़ होती है, प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी इंक्रीज़ होती है, पर वो कैपेसिटी इतनी ज़्यादा भी नहीं है कि जितनी डिमांड हो. अकॉर्डिंग टू गुडविन, adequate growth in demand is achieved through occasional bursts of innovational investment. तो अगर हम बाई चांस कभी अचीव कर भी लें, या जब भी हम ये अचीव करते हैं उतनी ग्रोथ जितनी हमें चाहिए,
जिसको हम पोटेंशियल ग्रोथ भी बोल सकते हैं, ग्रोथ अकॉर्डिंग टू डिमांड भी बोल सकते हैं, वो जब भी हम अचीव करते हैं वो इनोवेशनल इन्वेस्टमेंट के बेस पे है, उस इन्वेस्टमेंट के बेस पर है जिससे इनोवेशंस होती हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है, प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी इंप्रूव होती है। गुडविन के अकॉर्डिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ ए साइकिल मीन्स that aggregate demand is not always adequate to realize the full productive capacities of capitalism. गुडविन के अकॉर्डिंग साइकिल कब आ सकते हैं, जब जो डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड, वो उतनी ना हो कि इकॉनमी की जितनी प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी है वो सारी रियलाइज हो जाए। कैपिटलिज्म यहाँ कहने का मतलब है, जैसे हम कहते हैं नो इंटरफियरेंस ऑफ गवर्नमेंट, फ्री एंटरप्राइज इकॉनमी है, मार्केट बेस्ड अगर हम चलें कि मार्केट में जितनी डिमांड है उसके हिसाब से अगर हम सप्लाई करनी हो तो जितनी हम सप्लाई कर सकते हैं, जितना हमारा सप्लाई करने की कैपेसिटी है, उस पूरी कैपेसिटी को हम यूज़ कर लें, उतने मार्केट में स्कोप नहीं है, वही साइकिल जनरेट करते हैं ये चीज़ कि जितना हम आउटपुट कर सकते हैं उतनी मार्केट में उसकी डिमांड नहीं है। एंड एट फर्स्ट वी माइट बी टेम्प्टेड टू वंडर दैट दे आर एवर रियलाइज्ड, और बल्कि अगर हम कहते सोचें शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि जितना हम आउटपुट कर सकते हैं, जितना हमारी आउटपुट करने की कैपेसिटी है, जितना हमारा आउटपुट करने का पोटेंशियल है, पूरी कैपेसिटी को यूज़ करके, सारे एसेट्स को यूज़ करके, सारे रिसोर्सेज को यूज़ करके उतना आउटपुट कभी चाहिए हो इकॉनमी में, ये शायद ऐसा नहीं है कभी होता। इन जनरल न्यू टेक्निक्स रिक्वायर हैवी इन्वेस्टमेंट आउटलेस which swell demand so that both increased output per laborer and the increased number of laborers are absorbed। यहाँ डू नहीं है, सो है। तो जनरली अगर हम देखें न्यू टेक्निक रिक्वायर हैवी इन्वेस्टमेंट आउटलेस, अब अगर हमने इनोवेशनल इन्वेस्टमेंट करना है, नया इन्वेस्टमेंट करना है टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए, न्यू टेक्निक्स ये रिक्वायर करती हैं हैवी इन्वेस्टमेंट आउटलेस, तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। विच स्वेल डिमांड, जो चीज़ों की डिमांड को और भी बढ़ा देता है। सो दैट बोथ इंक्रीज्ड आउटपुट पर लेबरर जो आउटपुट इंक्रीज हुआ, एंड द इंक्रीज्ड नंबर ऑफ लेबरर्स आर अब्सॉर्ब्ड, तो इतनी ज़्यादा ये डिमांड के बराबर ग्रोथ नहीं हो पाती आउटपुट की, और डिमांड में उतनी इंक्रीज नहीं हो पाता। न्यू टेक्निक्स रिक्वायर हैवी इन्वेस्टमेंट आउटलेस, नई टेक्निक जो है वो चाहती है इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो। विच स्वेल डिमांड, जो डिमांड को बढ़ाता है। सो दैट बोथ इंक्रीज्ड आउटपुट पर लेबरर, क्योंकि जब हम टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, नई टेक्निक्स आएंगी तो पर लेबरर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, एंड नंबर ऑफ लेबरर्स भी इंक्रीज हो जाएंगे टाइम टू टाइम, तो वो पर लेबरर प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो गई। इट मीन्स एक लेबर पहले से ज़्यादा आउटपुट करने लग गया और नंबर ऑफ लेबरर भी ज़्यादा हो गए, तो हम आउटपुट करने की कैपेसिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इतनी ज़्यादा आउटपुट करने की कैपेसिटी जो है वो सारी यूज़ हो जाए, उतनी डिमांड इंक्रीज नहीं होती। When the economy has achieved its new higher level of output, तो जैसे ही हम इकॉनमी हायर लेवल ऑफ आउटपुट पर पहुंचती है, एंड कैपिटल, it cannot hold them because the great bursts of investment, both innovational and accelerational, is necessary to create the effective demand। अब देखो यहाँ पर क्या है, when the economy has achieved its new higher level of output, तो जो भी हायर लेवल ऑफ आउटपुट मीन्स, मान लो ये हमारी कैपेसिटी है, हम हायर लेवल यहाँ तक मान लो पहुँच गए, आउटपुट करते करते यहाँ तक हम पहुँच गए,
ये हमारा मैक्सिमम आउटपुट जो था, जो हम रियलाइज कर सकते थे ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड, वो हो गया. So when the economy has achieved its new higher level of output and capital, it cannot hold them. अब हम यहीं पे रुकें, इसके साथ चलते रहें या और ऊपर चला जाएं, इट कैन नॉट होल्ड देम, ये हम नहीं कर सकते. इसको टिका के यहाँ पे नहीं रख सकते, इसके साथ साथ नहीं चल सकते, इसके ऊपर नहीं चल सकते, ये नीचे को ही आता है. क्यों नहीं कर सकते हम इसको? बिकॉज द ग्रेट बर्स्ट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो हमने इस टाइम इन्वेस्टमेंट फटाफट किया, द ग्रेट बर्स्ट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट दोनों तरह का था, ये इनोवेशनल भी था और एक्सेलरेशनल भी था. इज़ नेसेसरी, ये ज़रूरी है कि हम एक करते रहें टू क्रिएट द अफेक्टिव डिमांड, ताकि डिमांड बनी रहे और आउटपुट और ग्रो होता रहे. पर जैसे ही ये इन्वेस्टमेंट रुक जाता है, एंड व्हेन इट सीजेस, डिमांड एंड आउटपुट ड्रॉप. इन्वेस्टमेंट ये जो था इनोवेशनल इन्वेस्टमेंट, जो कि हमें इसको हाईएस्ट पॉइंट पर बना के रखने के लिए चाहिए, या हाईएस्ट पॉइंट से और ऊपर जाने के लिए चाहिए, इसके बराबर जाने के लिए चाहिए, वो जो इन्वेस्टमेंट था अमाउंट, वो कम हो जाता है, सीज हो जाता है. तो जैसे ही वो सीज होता है, डिमांड भी कम हो जाती है चीज़ों की और आउटपुट भी कम होने लगता है, दस क्रिएटिंग अनएम्प्लॉयड कैपिटल एंड अनएम्प्लॉयड लेबर. तो कहने का हमारा मतलब क्या है कि जब हम ऊपर को जा रहे हैं तो नीचे को आना ज़रूरी है, कि नीचे को हम आएंगे ही आएंगे, तभी तो हमारा साइकिल बनेगा. तो इसने क्या मेन बताया गुडविन ने, कि जब हम ऊपर को जाते हैं तो हमारे आउटपुट में हमने बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, इनोवेशनल इन्वेस्टमेंट किया, टेक्नोलॉजी की इम्प्रूवमेंट की, लेबर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हुई, लेबर भी मान लो इंक्रीज़ हुई, तो सारा कुछ चलता रहा. पर हम ये इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा लगातार टाइम पर कर नहीं पाते, क्योंकि बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है. तो जैसे ही ये रुक जाता है इन्वेस्टमेंट, तो इकॉनमी नीचे को आनी स्टार्ट हो जाती है. दिस वॉज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ Goodwin's model of business cycle. For complete explanation of Goodwin model, must watch all the 6 parts of this video. Thank you. Thanks for watching this video.